भारत स्वाधीनता ହେଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ କମିଶନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ମାନେ ତାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ସ। ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ସ କେବେ ଆସିଥିଲା? ତ ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ସ ଆସିଥିଲା 1835 ମସିହାରେ। 1835ରେ ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଏ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଏହାର ଫୋକସ୍ ମେନଲି ଥିଲା। ତାପରେ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଆସିଥିଲା 1854 ମସିହାରେ। ତାପରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1882 ମସିହାରେ। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1902 ମସିହାରେ। ତାପରେ କୋଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1917 ମସିହାରେ। ହାଟକ୍ କମିଟି ଆସିଥିଲା 1929 ମସିହାରେ। ଏବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା 1936-37 ମସିହାରେ। ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି ଆସିଥିଲା 1937ରେ। ଆଉ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା 1944 ମସିହାରେ। ତ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏହା ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ କମିଶନ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଚାଲ ସବୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍। ତ ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ ଆସିଥିଲା 1834-35 ମସିହାରେ। ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ came in India as a law member of the Council Government General on June 13, 1834. In the minutes of Indian education, his important attention were as literature. ଦେଖ 1834 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ଲିଟରେଚର ଉପରେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଏହା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା। ତ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମକୁ ପଚାରେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଭାରତରେ କେଉଁ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ତ 1834 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ସ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଯଦି ପଚାରେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? 1834 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ମକାଉଲେ ମ୍ୟୁନିଟ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍। ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଆସିଥିଲା 1854 ମସିହାରେ। ଏହି ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ 1854 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଇଏ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ କହିଥିଲା। କ'ଣ କହିଥିଲା? ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍କୁ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1854 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା? ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଶନକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେଉଁ କମିଶନ? ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1882 ମସିହାରେ। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବେ ଆସିଥିଲା? 1882 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ୱାଜ୍ କନସିଡରେଡ୍ ଏଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନରେ ଏହା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ କଥା କହିଥିଲା। ଇଏ The first institution was established in 1886 in Madras and was known as Government Normal School. ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବା ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 1886 ମସିହାରେ। କେଉଁଠାରେ? ମାଡ୍ରାସରେ। ତାହାକୁ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ମାଡ୍ରାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ 1892ରେ ଆସିଥିଲା। was to recognize strengthen the existing system. Almost all the dimension of education was covered by it. The commission laid highlight on the establishment of a number of normal school for secondary school teacher. Overall এই ইন্ডিয়ান এজুকেশন কমিশন বা হন্টর কমিশন সেকেন্ডারি স্কুল উপরে ফোকস করেছিল। সেকেন্ডারি স্কুল টিচর ট্রেনিং উপরে। বুঝিপারে? তো ଆମକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନକୁ ଆଉ କେଉଁ କମିଶନ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ତ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଆମକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା, ତ 1882 ମସିହାରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଶନର ପଚାରେ ଯଦି
क्यों ऊपर फोकस करथिला तो सेकेंडरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग ऊपर यह फोकस करथिला बुझी पारले। देख 1902 मसीह 1902 मसीह आसीला यूनिवर्सिटी एजुकेशन बा यूनिवर्सिटी कमिशन कौन यूनिवर्सिटी कमिशन आसीला आउ ये यूनिवर्सिटी कमिशन कौन कहितिला तो यूनिवर्सिटी कमिशन कहितिला टीचर एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग उपरे ये फोकस करथिला किए यूनिवर्सिटी कमिशन केबे आसीथिला यूनिवर्सिटी कमिशन जदि पचारे तो 1902 मसीह रे आसीथिला यूनिवर्सिटी कमिशन। तापर देख कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन 1917 मसीह कोलकाता ठारे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होला और से अनुसार कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन आसीथिला। तो यही कमिशन जदि आमको एग्जाम रे पचारे कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन केबे आसीथिला तो 1917 मसीह रे आसीथिला। एही कमिशन को आउ क्यों नाम रे जाना जाए तो कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन को साडलर कमिशन भाव रे मध्य जाना जाए। In 1919, the Sadler Commission presented its report and emphasized the role of university in the professional training of secondary school teachers and educational research. देख 1917 मसीह कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन आसीथिला आ 1919 मसीह यही कमिशन प्रेजेंट कला गोटे रिपोर्ट जहाँकि रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर उपर गोटे रिपोर्ट ये प्रेजेंट करथिला। तो एग्जाम रे कौन पचारिबो हमकु एग्जाम रे पचारिबो कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन केबे आसीथिला तो 1917 मसीह रे आसीथिला। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन को आउ क्यों कमिशन भाव रे जणा जाए तो साडलर कमिशन भावे जणा जाए हैला बुझिले। नेक्स्ट जीवा तापर देख 1929 मसीह रे आसीथिला हाटक कमिशन। हाटक कमिशन हाटक कमिटी केबे आसीथिला 1929 मसीह ये कौन करथिला ये साडलर कमिशन रो से रिव्यू टिकू आउ टिके भल भाव रे निज पटु देइथिला। तो यही कमिटी 1929 मसीह आसीथिला। तो आमको जदि पचारे हाटक कमिटी केबे आसीथिला तो 1929 मसीह आसीथिला। ये कहा ऊपर फोकस करथिला ये मध्य से स्कूल आउ टीचर ट्रेनिंग ऊपर फोकस करथिला आउ ये हाटक कमिटी इंडियन एजुकेशन रिव्यू पाई आसीथिला। तापर देखंतु 1937 मसीह एमके गांधी महात्मा गांधी द्वारा वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है जहाँ द्वारा गोटे न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन आसिला जहाँ को बेसिक एजुकेशन कहगला। यही बेसिक एजुकेशन फोकस करथिला क्राफ्ट सेंटर रे आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर रे बुनियादी शिक्षा रे टीचर ट्रेनिंग प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल ऊपर यह फोकस करथिला। आउ देख 1938 मसीह बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज सेटअप करागला अलाहाबाद रे आउ विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल सेटअप करागला वर्धा ठारे 1938 मसीह यही बेसिक एजुकेशन स्कीम वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रे होइथिला आउ एहाकू जाकिर हुसैन कमिटी बा जाकिर हुसैन कमिशन भाव रे मध्य जणा जाए। एहा सहित जड़ित जाकिर हुसैन कमिटी। तो बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा आर्ट क्राफ्ट एजुकेशन यह सब किए आनी तो महात्मा गांधी आनी क्यों कॉन्फ्रेंस रे आनी 1937 वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रे आनी क्यों ठारे होइथिला ई कॉन्फ्रेंस तो वर्धा ठारे होइथिला बुझी पारिले। देख 1937 मसीह आसीथिला द एबर्ड वुड रिपोर्ट कौन आसीथिला एबर्ड वुड रिपोर्ट आउ ये फोकस करिथिला पॉलिटेक्निक उपरे। तो आमको जदि एग्जाम रे पचारे पॉलिटेक्निक उपरे किए फोकस करिथिला तो पॉलिटेक्निक लगे आसीथिला द एबर्ड वुड रिपोर्ट केबे आसीथिला 1937 मसीह रे बुझी पारिले। एबर्ड वुड रिपोर्ट आमे कौन कौन देखिले प्रथमे देखिले आमे 1935 मसीह 34-35 मसीह मकाउलेम यूनिट आसीथिला। मकाउलेम यूनिट जो समय आसीथिला भारतर गवर्नर जनरल किए थिले तो गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जेतेबेले मकाउलेम यूनिट आसिला से समय से कहा ऊपर फोकस करथिला तो सी इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश एजुकेशन पाई
आसीथिला। जदि हमको पचारे भारत रे इंग्लिश एजुकेशन रो पाई किए आसीथिला प्रथमे तो मकाउले म्यूनिट्स केबे आसीथिला 1834-35 मसीह रे आसीथिला मकाउले म्यूनिट्स। तापरे आसीथिला वुड डेस्पाच को आउ कोन कहा जाए माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाए। वुड डेस्पाच केबे आसीथिला 1854 मसीह रे आसीथिला। तापरे आसीथिला हंटर कमिशन को आउ कोन कहा जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन कहा जाए। हंटर कमिशन जदि केबे आसीथिला पचारे 1882 मसीह रे आसीथिला। ताहापरे आसीथिला 1902 मसीह रे यूनिवर्सिटी कमिशन टीचर ट्रेनिंग उपरे फोकस करथिला। तापरे 1917 मसीह रे आसीथिला साडलर कमिशन 1917 मसीह रे जे आसीथिला ताहाकू आउ कोन कहा जाए ताहाकू कहा जाए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन। तापरे एबट वुड रिपोर्ट 1937 मसीह रे आसीथिला जे कि पॉलिटेक्निक कथा कहिथिला। तापरे बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा वार्धा स्कीम आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन यही उपरे किए आसीथिला तो जाकिर हुसैन कमिटी आसीथिला। आउ एहा वार्धा कॉन्फ्रेंस ठारे महात्मा गांधी यही सब उपरे कहिथिले। बुझिले एतिकी। नेक्स्ट जीवा देख 1944 मसीह रे आसीथिला सर्जेंट रिपोर्ट। तो ये सर्जेंट रिपोर्ट केबे आसीथिला जदि पचारे तो 1944 मसीह रे आसीथिला। ये कौन ऊपर फोकस करिथिला ये एजुकेशन सिस्टम को किपरि भाबरे आउ टिके भलो करा हबो ताहा ऊपर फोकस करिथिला। आउ एहा को आउ कोन कहा जाए पोस्ट वार एजुकेशन कमिशन कहा जाए। आमको जदि एग्जाम रे पचारे पोस्ट वार एजुकेशन कमिशन काहा को कहा जाए तो सर्जेंट रिपोर्ट 1944 मसीह रे जो आसीथिला ताहा को पोस्ट वार एजुकेशन कमिशन कहा जाए। बुझी पारिले। तो एहा थिला इंडियन एजुकेशन कमिशन बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत रे आसीथिबा एजुकेशन कमिशन और कमिटीज जहाँ स्वाधीनता पूर्वरु आसीथिले। तापरे आमे देखिबा केउ केउ कमिटीज आ कमिशन स्वाधीनता परे आसिले। तापरे देखो आमे देखिबा एजुकेशन कमिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत स्वाधीनता हेला परे केउ केउ कमिशन आसीथिला तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आसीथिला 1948-49 मसीह रे। तापर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन आसीथिला 1952 मसीह रे। द एजुकेशन कमिशन आसीथिला 1964-66 मसीह रे। नेशनल नॉलेज कमिशन आसीथिला 2009 मसीह रे। एई सब एजुकेशन कमिशन देखिबा आमे। तापर देखो मेजर एजुकेशन पॉलिसी आसीथिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आसीथिला 1968 मसीह रे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मसीह रे आसीला। एई 1986 रो एजुकेशन पॉलिसी को पुणी रिवाइज करिकी रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 मसीह रे आसीला। या देखिबा। तापर देखो स्कूल्स फॉर इक्वालिटी एंड इक्विटी कॉमन स्कूल सिस्टम आसीला। देखिबा नाइबरहुड स्कूल देखिबा। तापर अल्टरनेटिव स्कूल देखिबा। तापर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन सर्वशिक्षा अभियान देखिबा। तापर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 देखिबा। तापर 5 ईयर प्लान्स फॉर एलिमेंटरी एजुकेशन देखिबा। तापर कमिशन एंड पॉलिसीज ऑन एजुकेशन देखिबा जहाँ एलिमेंटरी एजुकेशन चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप यह सब आमे देखिबा। देखो प्रथमे आमे देखिबा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन केबे आसीथिला तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आसीथिला 1948 मसीह रे। भारत स्वाधीन हैला 1947 मसीह रे। 48 मसीह रे आसिला यूनिवर्सिटी कमिशन। तो आमे जानि पारुछे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहिछि तो ये यूनिवर्सिटी ऊपर फोकस रहिथिला। एहार यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन एजुकेशन हाइजर एजुकेशन बा यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऊपर यह फोकस करिथिला। तो आमको जदि एग्जाम रे पचारे भारत स्वाधीन हैला परे फर्स्ट एजुकेशन कमिशन केउटी तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन केबे आसीथिला तो 1948 मसीह रे आसीथिला। यूनिवर्सिटी एजुकेशन रो चेयरमैन किए थिले तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन रो चेयरमैन थिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बुझी पारले। यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1948 मसीह रे आसीथिला। यूनिवर्सिटी एजुकेशन रो चेयरमैन किए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही एजुकेशन कमिशन कहा ऊपर फोकस करथिला तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऊपर फोकस करथिला। बुझी पारिले। तापर देखंतु सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952-53। ए सेकेंडरी एजुकेशन को
कौन कहुए आउ क्यों नाम जना जाए तो यही सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन चेयरमैन थिले डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर नाम अनुसार यह मुदालियर कमिशन कहुए। जदि आमको पचारे मुदालियर कमिशन केबे आसीथिला तो 1952 मसीह आसीथिला बोली आमे कहि परिबा। एग्जाम रे आउ पचारे मुदालियर कमिशन को आउ क्यों कमिशन भाव में जना जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन भाव में जना जाए। जदि आमको पचारे मुदालियर कमिशन बा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केबे आसीथिला तो 1952 मसीह यह आसीथिला। जदि आमको पचारे सेकेंडरी एजुकेशन उपरे क्यों कमिशन बेसिकली फोकस करिथिला तो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बा मुदालियर कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन उपरे फोकस करिथिला। बुझी पारिले? तो देखो सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियर कमिशन कहुए सेकेंडरी एजुकेशन को 1952-53 मसीह यह आसीथिला। यह सेकेंडरी एजुकेशन उपरे फोकस करिथिला। देखो नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन केबे आसीथिला 1958-59 मसीह आसीथिला। तो द नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज अपॉइंटेड इन 1958-59 1958-59 मसीह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ए नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन रो चेयरमैन थिले फॉर मेकिंग ए सर्वे ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ वुमेन्स एजुकेशन विथ इट्स प्रॉब्लम्स एंड मेक सम सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। देखो जदि एग्जाम रे पचारे वुमेन एजुकेशन पई क्यों कमिटी आसीथिला तो वुमेन एजुकेशन कहीं आसीथिला नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958। यही कमिटी को आउ कौन भावे जना जाए तो दुर्गाबाई देशमुख कमिटी भावे जना जाए। जदि एग्जाम रे पचारे दुर्गाबाई देशमुख को आउ क्यों कमिटी कहा जाए तो दुर्गाबाई देशमुख को नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन कहा जाए। तो बुझी पारिले? प्रथम क्वेश्चन कौन पचार नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन केबे आसीथिला 1958 मसीह आसीथिला। यही कमिशन को आउ क्यों कमिशन भावे जना जाए दुर्गाबाई देशमुख कमिशन भावे जना जाए। यही कमिशन मेन फोकस कौन थिला वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करवा। जदि पचारे यार चेयरमैन किए थिले तो यार चेयरमैन थिले दुर्गाबाई देशमुख। तेणु यही कमिटी को दुर्गाबाई देशमुख कमिटी मध्य कहा जाए। 1964-66 यह केबे आसीथिला 1964-66 आसीथिला। यार चेयरमैन किए थिले तो यार चेयरमैन थिले डॉक्टर डीएस कोठारी। तो डॉक्टर डीएस कोठारी इंडियन एजुकेशन उपरे बहुल भाव भल भाव फोकस करथिले आ तांकर पई इंडियन एजुकेशन कमिशन तांको कहागला आफ्टर इंडिपेंडेंस। आउ इंडियन एजुकेशन उपरे बहुत काम करथिले ताहा सब आमे देखिबा। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कमिशन भाव में 1964-66 एजुकेशन कमिशन को जना जाए। तो यार चेयरमैन किए थिले जदि पचारे एजुकेशन कमिशन 1964-66 रो तो डॉक्टर कोठारी कमिशन डॉक्टर कोठारी थिले यार चेयरमैन। केबे आसीथिला 1964-66 मसीह आसीथिला। ये कौन कौन करथिला आमे देखिबा। देखो कोठारी कमिशन एजुकेशन आउ नेशनल डेवलपमेंट ऊपर गोटे रिपोर्ट देथिला। एई रिपोर्ट अनुसार कोठारी कमिशन भारत रो एजुकेशन सिस्टम रे कौन कौन डेवलप करा जाय पारिबो किभली भाव रे एजुकेशन को उन्नत मानर करा जाय पारिबो ताहा ऊपर गोटे रिपोर्ट देथिला किए कोठारी कमिशन। तापर देखो एई कोठारी कमिशन रो अनुसार आसीथिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 रे आसीथिबा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1968 कोठारी कमिशन आनीथिला। एई कमिशन गोटे स्ट्रक्चर देथिला कोन देथिला गोटे स्ट्रक्चर देथिला। तो से स्ट्रक्चर टी होची 10+2+3। ए 10+2+3 एटा गोटे एजुकेशन स्ट्रक्चर देथिला जो थिरे 1 ରୁ 10th पर्यंत 1 ରୁ 10th क्लास पर्यंत यह स्कूल हेबो तापरे +2 हेबो तापरे +3 हेबो। तो ये स्ट्रक्चर टी किए आनीथिला जदि एग्जाम रे पचारे तो 1968 थिले 68 आंसर देबे नहले कोठारी कमिशन थिले कोठारी कमिशन आंसर हेबो। बुझी पारिले? कोठारी कमिशन टीचर स्टेटस ऊपर कहिथिले टीचर किपरि स्टेटस भल भाव रहबो टीचर किपरि गोटे स्कूल रे भल भाव रे शिक्षादान करि पारबे सही पई टीचर को भल भाव रे से ट्रेनिंग दिया जीवो। टीचर स्टेटस टीचर एजुकेशन ऊपर कहले कोठारी कमिशन
टीचर जेतेबेले भल भाव ट्रेनिंग पाई पारिबे, टीचर ट्रेनिंग पाई सारिला परे से भल भाव स्कूल रे शिक्षादान करें। तेणु टीचर होउछंती केन्द्रबिंदु, कहीं टीचर ही स्कूल आउ आमर देशर भविष्य से नागरिक छोट छोट बालक माननकु तांकर भविष्य गढ़ापी निजे काम करिथांती टीचर। तेणु टीचर एजुकेशन उपर बेसिकली फोकस करेंगे, किपरि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हेबो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रो, सही कथा कहिथिले कोठारी कमिशन। এই कोठारी कमिशन को समय रे ही आसीथिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। नेशनल पॉलिसी ऑन 1968 रे कोठारी कमिशन बहुत गुड़ाए पॉलिसी आनीथिले, जहा द्वारा इंडियन एजुकेशन कमिशन बहुत डेवलप हो पारिथिला। तो देख 1968 मसीह जो आसीथिला, यह को नेशनल इंटीग्रेशन पाई, कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर, नेशनल प्रोमोट नेशनल प्रोग्रेस, यही सब उपरे ध्यान देथिले किए कोठारी कमिशन। देखो यही कोठारी कमिशन द्वारा ही द एनपी 1968 वेरी ब्रीफली इंडिकेट द strenuous effort should be made for the early fulfillment of direct principle under Article 45 of Constitution, seeking to provide free and compulsory education for all children। देखो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन पाई 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यह आर्टिकल 45 रे दिया जाइछि। जदि आमको एग्जाम रे पचारे आर्टिकल 45 रे कौन दिया जाइछि, तो आर्टिकल 45 रे बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अच्छी क्योंथिरे आर्टिकल 45 रे, आउ आर्टिकल 21 ए रो, आर्टिकल 21 रो ए रे दिया जाइछि हमको कंपलसरी एजुकेशन फॉर अप टू 14 इयर स्टूडेंट्स। 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाइछि आर्टिकल 21 रे संविधान रो, और आर्टिकल 45 रे दिया जाइछि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आर्टिकल 45 रे जो आसीछि कोठारी कमिशन रो रेकमेंडेशन रे यह आसीथिला, बुझी पारिले। तापर देखो ये कोठारी कमिशन को नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 परे 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आसिला। यही पुणी यही 68 को रिफॉर्म कला और एथिरे किछि डेवलप करिला, ताहा आमे आगो को देखिबा। तापर देखो 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन परे आसिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कौन करथिला आमे देखिबा। देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन 1985 एंड पॉलिसी वाज आर्टिकुलेट इन द डॉक्यूमेंट चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। देखो 1968 परे क्यों पॉलिसी आसीथिला, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आसिला। यह गोटे 1985 मसीह चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव गोटे आसीथिला यह रिपोर्ट। तो यही हिसाब रे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ताहार रिपोर्ट टी आनीथिला। देखो द 1986 पॉलिसी एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी गोल्स, यार गोल आनीथिला 1968 पॉलिसी रे जो आसीथिला ताहाकू भल भाव रे करि पारिबो। लाइक सेटिंग ऑफ स्कूल विदिन ए किलोमीटर, गोटे किलोमीटर भितरे स्कूल रहिबो, ताहा 1968 अनुसार 1986 रे आसिला। आउ क्वालिटी एजुकेशन आउ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इनक्रीज करा जिवो, फाइनेंशियल सपोर्ट यह सबू 1986 रे कॉमन स्कूल सिस्टम बा सेटिंग ऑफ ए स्कूल विदिन ए किलोमीटर रे अणागला। देखो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 रे आसीथिला। से क्यों सिस्टम आनीथिला, से स्ट्रक्चर आनीथिला 10+2+3। तो यही सिस्टम को भांगी देकी 1968 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रे 10+2+3 को भांगी देकी 5+2+5+3+2 आनिला। तो 5+3+2 किए आनिला जदि पचारे, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आनिला। तो प्रथम 5 ईयर होची प्राइमरी, तापर 3 ईयर होची अपर प्राइमरी,
आउ टू ईयर होची हाई स्कूल। तो 5+3+2 सिस्टम किए आनिला जदि पचारे तो किए आनिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यह आनिला। देख नवोदय विद्यालय जो आसिला नवोदय विद्यालय 1986 रो पॉलिसी अनुसार आसिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अनुसार। तापर देख यही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एलिमेंटारी एजुकेशन पाई कौन कौन आनी थिला। तो एलिमेंटारी एजुकेशन पाई देख से एसएस एनरोलमेंट रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स आनी थिला। तो स्टूडेंट मानकर स्कूल रे एनरोलमेंट कमी कमी जाउथुला, सेमानकर एसएस कमी कमी जाउथुला, स्टूडेंट माने स्कूल को जाऊ नथिले। तो सही ऊपर ये फोकस करिकी से माने किपरि भाबरे स्कूल को भलो भाबरे आसीबे, तांको शिक्षाटी ग्रहण करिवे, सही ऊपर यह 14 वर्षर शिशु मानक पई 0 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत यह फोकस करथिला। तापर देख क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऊपर ये फोकस करथिला ऑफ एजुकेशन बाय इम्प्रूविंग द स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट किपरि भाबरे क्वालिटी हेबो, चिल्ड्रेन सेंटर आउ एक्टिविटी सेंटर मेथोडोलॉजी टीचिंग रे दिया जीवो, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन हेबो, फिजिकल पनिशमेंट दिया जीवो नाही, कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस ऑफ नॉट फॉलोइंग द स्टूडेंट्स इन एनी क्लास एट एलिमेंटरी लेवल एंड अरेंजिंग द एसेंशियल फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल। ओवरऑली ये स्कूल रे किपरि चाइल्ड सेंटर आउ एक्टिविटी सेंटर एजुकेशन हेबो ताहा उपरे फोकस करथिला। स्कूल रो एनवायरनमेंट किपरि भलो भाबरे, स्कूल रो फिजिकल स्ट्रक्चर जो एनवायरनमेंट जेउठारे स्टूडेंट माने बसिकी पढ़ंती, जेउठारे तांकर भविष्यत पई से माने तांकर आरंभ करती पढ़ापढ़ी, तो सहीटाकू डेवलप करबा पई क्वालिटी एनवायरनमेंट उपरे फोकस करिथिला, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट उपरे। तापरे चाइल्ड सेंटर आउ एक्टिविटी सेंटर टीचिंग मेथोडोलॉजी उपरे ध्यान देइथिला, स्टूडेंट मन को फिजिकल पनिशमेंट रु दूर करैथिला ये, आउ एलिमेंटरी एजुकेशन रे किपरि एसेंशियल फैसिलिटी रहिबो गोटे प्राइमरी स्कूल सही उपरे यह ध्यान देइथिला। तापर अरेंजिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन मानक पई नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी यह अरेंज करिथिला 1986 पॉलिसी द्वारा। हु लेफ्ट द स्कूल इन बिटवीन और आर रिसाइडिंग एट प्लेस नॉट हैविंग स्कूल, जेउठारे स्कूल नाही सही पाखरे नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो सुविधा ऊपर भी मध्य यह ध्यान देथिला। तापर ध्यान देथिला टीचर एंड टीचर एजुकेशन उपरे, जेपरि कि हमर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डैट उपरे भी भलो भाबरे टीचर एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग टी किपरि भलो भाबरे हेबो सेही उपरे यह ध्यान देथिला। देखो हमको जदि डैट रो फुल फॉर्म पचारे तो डैट रो फुल फॉर्म होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तापर देखो विथ द कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्स फॉर एलिमेंटरी स्कूल टीचर। एलिमेंटरी स्कूल टीचर मानक पई प्री सर्विस आउ इन सर्विस ट्रेनिंग यह प्रदान करिवो। यह द्वारा यही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यह आनीथिला। प्री सर्विस माने आमे जो करूचे सीटी बीएड यह होची प्री सर्विस चाकरी पाइबा पूर्वरु, इन सर्विस माने चाकरी रे थिला समय रे। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग मध्य दिया जीवो आउ इन सर्विस ट्रेनिंग मध्य दिया जीवो एलिमेंटरी स्कूल पाई। तो हमको जदी क्वेश्चन पचारे प्री सर्विस आउ इन सर्विस ट्रेनिंग पाई डिस्ट्रिक्ट रे किए हेड अटे, तो डैट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ए प्री सर्विस आउ इन सर्विस ट्रेनिंग टी प्रदान करि थाए। तापर देखो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करिवा पई सेकेंडरी लेवल रे यहाकू एससीआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा अणागला। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पई नेशनल काउंसिल किए अछि, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केबे आसीथिला, तो 1995 मसीहा रे एनसीटी आसीथिला। तो ये प्रोवाइड करिवो नेसेसरी रिसोर्स आउ कैपेबिलिटी टू एक्रेडिएट इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन रे टीचर मानक किबरि क्वालिटी एजुकेशन मिलिबो सेही उपरे यह फोकस करिथिला एनसीटी रो अनुसारे। आउ टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रे टीचर इंस्टीट्यूट एजुकेशन किपरि भाबरे रहिबो ताहा उपरे मध्य यह फोकस करिथिला। तापर देखो द एनपीई
and program of action elaborate discuss about the concept of language development and emphasize the adoption of regional language as the medium of instruction at the university stage. Mother tongue should be the medium of instruction at the school stage. देखो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आउ एनपीई आनिले मदर टंग किपरि भाबरे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हेबो स्कूल स्टेज रे आउ यूनिवर्सिटी स्टेज रे रीजनल लैंग्वेज किपरि हेबो ताहा ऊपर रेकमेंड करिला एनपीई 1986 आउ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992. लैंग्वेज ऊपर कौन आसीथिला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्रूवमेंट इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अणागला 3टी लैंग्वेज ଯେଉଁଠାରେ मदर लैंग्वेज ହେଉଛି रीजनल लैंग्वेज आंचलिक भाषा तापरे नेशनल लैंग्वेज ହେଉଛି बा थर्ड लैंग्वेज ହେଉଛି नेशनल लैंग्वेज हिंदी बा थर्ड लैंग्वेज हिंदी बा संस्कृत आउ इंग्लिश को रखागला देख प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश आउ अदर फॉरेन लैंग्वेज रखागला डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ए लिंक लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज को गोटे लिंक लैंग्वेज रखागला आउ इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज भाव में रखागला. तापर देख द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन दिस पॉलिसी प्रपोज ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्यों किए आनीथिला केबे आसीथिला जदि पचारे तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन द्वारा अना जाइथिला. एई ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहले कोन तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहले टू इम्प्रूव द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन प्राइमरी स्कूल रे बेसिकली रिसोर्स आओ ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स जहाँ अत्यधिक आवश्यक सही सबू प्रेजेंट रहिबो केउठारे प्राइमरी स्कूल रे एहा को ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहा जाए. तापर देखो द की लेजिस्लेशंस ऑफ द 1986 पॉलिसी वेयर द प्रमोशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड द कंटिन्यूड एम्फासाइज ऑन सेकुलरिज्म एंड साइंस. The NPE 1986 also advocated developing consciousness about environment रो डेवलपिंग ऊपर यह फोकस करिथिला. तापरे वैल्यू एजुकेशन आउ रोल ऑफ मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऊपर यह फोकस करिथिला. तापरे फोकस करिथिला टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स साइंस स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एही सब ऊपर 1986 नेशनल पॉलिसी फोकस करिथिला. तापर देखो आमको जदि पचारे एनपी 1986 यही कमिटी रो हेड किए थिले तो प्रोफेसर राममूर्ति यार हेड थिले आचार्य राममूर्ति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रो हेड थिले. तेणु यहाँ को द रिपोर्ट ऑफ राममूर्ति कमिटी मध्य कहा जाए तो राममूर्ति कमिटी मध्य कहा जाए क्योंटी को 1986 नेशनल पॉलिसी. तापर देखो प्रथमे कौन आसीथिला एनपीई 1968 आसिला तापरे कौन 1986 आसिला. तापरे ई 1986 को स्लाइडली चेंज करी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आसिला. तो 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन और 1968 होछि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. तो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कौन तो 1968 এই ন্যাশনাল পলিসি অন এজুকেশন 1968 কোঠারি কমিশন অন্ডরে আসিছিলা. 1986 র চেয়ারম্যান কিଏ ଥିଲେ তো 1986 র চেয়ারম্যান ଥିଲେ কিଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମମୂର୍ତ୍ତି. ତାପରେ ଆସିଲା 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଏକ୍ସନ୍. ଦେଖ Before considering the suggestion of Ramamurthy committee, the government appointing another committee under the chairmanship of Janardhan Reddy in 1992, the report of committee provided base of modified national policy on education and concept program emerged program of action 1992. 1992 रे chairmanship of Janardhan Reddy को chairmanship रे ए program of action को अणागला. तापर देखो द रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रपोज एजुकेशन फॉर इक्वालिटी इट रेकमेंडेड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड टू एनहांस कवरेज एंड अप टू अपर प्राइमरी लेवल. यह आउट के एनहांस कला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को यह मिनिमम 50% फीमेल टीचर आउ
अपॉइंटमेंट ऑफ एलिमेंटरी लेवल रे मिनिमम 50% फीमेल टीचर रहिबा पई यह सुजोग देला। इन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशनली डिप्राइव्ड एंड वर्किंग बॉयज एंड गर्ल्स एजुकेशनल प्रोग्राम दिया गला। एजुकेशनली डिप्राइव्ड वर्किंग बॉय आउ गर्ल मानकू कंप्यूटर एजुकेशन दिया गला। आउ मेनी स्कूल पॉसिबल इट वाज also proposed elementary school should be open throughout the year। elementary school ऊपर यह फोकस कला। तो देख रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रे जो आसिला तो यह चेयरमैनशिप कहाँकर जनार्दन रेड्डी आउ जड़े थिले प्रोफेसर यशपाल। किए प्रोफेसर यशपाल आउ जनार्दन रेड्डी अनुसार 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन आसिला। देख लर्निंग विदाउट बर्डन गोटे पचारे लर्निंग विदाउट बर्डन तो यही बुक टी किए आनी किए आनी छुआ मानक जो बोझटी को कम करने स्टडी रिलेटेड बोझटी को तो यह प्रोफेसर यशपाल आनी लर्निंग विदाउट बर्डन और से यही ऊपर गोटे बुक लिखी से बुकटी होची लर्निंग विदाउट बर्डन। बुझीपारे तापर देख कॉमन स्कूल सिस्टम कौन देख द एजुकेशन कमिशन 1964-66 हैज रेकमेंडेड ए कॉमन स्कूल सिस्टम। कोठारी कमिशन बा कॉमन स्कूल सिस्टम द एजुकेशन कमिशन 1964 रेकमेंड कला जे कॉमन स्कूल सिस्टम हो जहाँ द्वारा पब्लिक एजुकेशन एज द बेसिक of building and of the national system of education with a view of bring the different social class and the groups teacher and thus promote the emergence of an egalitarian and integrated society। देखो टीचर एजुकेशन कमिशन 1964 कॉमन स्कूल सिस्टम आनिला। यह द्वारा समस्त सोशल कैटेगरी सोशल क्लास स्टूडेंट चाइल्ड एठारे पढ़ी पारिबे मुक्त भाव एठारे पढ़ी पारिबे। एथिपाई इंटीग्रेटेड सोसाइटी रे इंटीग्रेटेड एजुकेशन पाई कॉमन स्कूल सिस्टम अनागला। ई कॉमन स्कूल सिस्टम रे देखो फर्दर 1986 पॉलिसी emphasized the common school system would be open to all children irrespective of social economic and other difference। देखो कॉमन स्कूल सिस्टम माने कॉमन माने साधारण एठारे साधारण समस्त चाइल्ड सोशल इकोनॉमिक यही सबुरे बैकवर्ड आउ मध्य समस्त स्टूडेंट एठारे पढ़ी पारिबे। 1986 पॉलिसी व्हाइल एडवोकेटिंग ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन रिजॉल्व दैट effective measure will be taken in the direction of common school system recommended in 1968 policy। It also noted the constitutional embodies to principle equality and justice on which the national system of education is conceived। देखो यही कॉमन स्कूल सिस्टम रे कौन कला गला कॉमन स्कूल सिस्टम जहाँ रेकमेंड करथिला 1968 रे ताहाकू यह अणागला 1986 रे आउ ए कॉमन स्कूल सिस्टम रे सोशियली एजुकेशनली समस्त कैटेगरी डिफरेंस थिवा कैटेगरी समस्त स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली यहाकू प्रिंसिपल दियागला इक्वालिटी आउ सोशल जस्टिस अनुसार समस्त को एजुकेशन मिली पारिबो। तापर देखो नाइबरहुड स्कूल कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइबरहुड स्कूल इन द सेंट्रल टू द कॉमन स्कूल सिस्टम। ए कॉमन स्कूल सिस्टम अनुसार नाइबरहुड स्कूल मध्य एका प्रकार गोटे प्रकार द कोठारी कमिशन रिपोर्ट रेकमेंडेड दैट ईच स्कूल विद इन द कॉमन स्कूल सिस्टम शुड बी अटेंडेड बाय ऑल चिल्ड्रेन इन द नाइबरहुड। देखो नाइबरहुड स्कूल सिस्टम माने कौन ए स्कूल सिस्टम यह कहला जे घर पाखरे स्कूल हेब स्कूल बेसी दूर रे रखा जीव नाही तो विदिन 1 किलोमीटर गोटे किलोमीटर भितर एलिमेंटरी स्कूल रहिबो आउ विदिन 3 किलोमीटर भितर हाई स्कूल टी रहिबो। एलिमेंटरी स्कूल केते 1 किलोमीटर भितर आउ अपर प्राइमरी बा हाई स्कूल रहिबो 3 किलोमीटर भितर। तो यह नाइबरहुड स्कूल सिस्टम अनुसार अणागला जहाँ द्वारा स्टूडेंट माने निज पाखरे घर पाखरे स्कूल टी को एसेस करि पारिबे। देखो स्ट्रक्चर एजुकेशन स्ट्रक्चर क्यों कमिशन क्यों स्ट्रक्चर ऊपर रिपोर्ट देथिला
तो आमको जब एग्जाम रे पचारे 8+3+3 तो यह मुदालियर कमिशन आनी यही 8 रे कौन थिला 1 to 8 ईयर एजुकेशन थिला तापर 3 रे थिला 9 10 और 11 आउ 3 रे थिला 12 13 एंड 14 मुदालियर कमिशन केवे आसीथिला तो मुदालियर कमिशन आसीथिला 1952 मसीह रे आउ ये 8+3+3 यही स्ट्रक्चर एजुकेशन टी देइथिला जदि आमको एग्जाम रे पचारे 8+3+3 यही एजुकेशनल स्ट्रक्चर टी किए आनीथिला तो मुदालियर कमिशन आनीथिला मुदालियर कमिशन केबे आसीथिला 1952 मसीह रे आसीथिला मुदालियर कमिशन को आउ क्यों कमिशन भाव में जना जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन भाव में जना जाए जदि कहा जाए मुदालियर कमिशन क्यों एजुकेशन उपरे फोकस करिथिला तो फोकस करिथिला सेकेंडरी एजुकेशन उपरे ई सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन किए थिला जदि पचारे तो चेयरमैन थिले डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तेनु एही सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को मुदालियर कमिशन भाव में जना जाए तापर देखो 10+2+3 10+2+3 यही आनीथिला कोठारी कमिशन क्यों थिरे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 रे कोठारी कमिशन 10+2+3 स्ट्रक्चर आनीथिला 10 रे 1 to 10 पर्यंत स्कूल +2 रे +2 और +3 रे +3 जो +3 बीए डिग्रीटा है बुझी पारे तापर देखो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आनिला 5+3+2 आनिला स्ट्रक्चर 5+3+2 स्ट्रक्चर जदि किए आनीथिला पचारे तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आनिला तापर एनपी 2020 कौन आनिला 5+3+3+4 तो बुझी पारे 5+3+3+4 यह आम आगे को देखा यह आनिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो प्रथमे 8+3+3 किए आनीथिला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बा मुदालियर कमिशन 1952 मसीह आनीथिला तापर 10+2+3 किए आनीथिला 10+2+3 कोठारी कमिशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 रे एही स्ट्रक्चर टी को आनीथिला तापर एनपी 1986 रे 10+2+3 को अन्य भाव में आनिला 1986 नेशनल पॉलिसी 5+3+2 करिला तापर एही सब को चेंज करी एनपी 2020 आनिला 5+3+3+4 एही स्ट्रक्चर टी आनिला बुझी पारिले देख प्रथमे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आसिला 1968 तापर 1986 आसिला तापर 1986 नेशनल पॉलिसी को रिवाइज करिकी रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन आसिला 1992 रे तापर 2020 रे आसिला न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आ एबे आमे देखिबा एनईपी 2020 कोन कोन गला तो देखो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द new education policy NEP 2020 was aimed to introduce several change in Indian education system from school to college पर्यंत several change Indian education रे आनिबा पई NEP 2020 अनागला the NEP 2020 aims at making India as a global knowledge superpower NEP 2020 एम रखिला जे इंडिया को गोटे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर मेक करबा पई The cabinet has also approved the renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education. तो कैबिनेट मध्य यहाँ को अप्रूव कला जे यहाँ को नुआ नाम दिगला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करागला द एनईपी क्लियर बाय द कैबिनेट इज द ओनली थर्ड मेजर रिवैम्प फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस The two earlier education policy were brought in 1968 and 1986. 1968 मसीहा और 1986 मसीह दुईटी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आसी सारी तापर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आसिला एनईपी 2020 स्कूल एजुकेशन रे कौन कला देख यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल यूनिवर्सलाइजेशन करागला एजुकेशन को प्री स्कूल रु सेकेंडरी स्कूल को विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एठार किपरि इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 पर्यंत एनरोलमेंट रेशियो किपरि 100% हेबो ताहा उपरे यह ध्यान देला जे बोली स्टूडेंट माने स्कूल को जीवारु छाड़ी जाउछंती स्कूल
कम जाउछंती तो से एनरोलमेंट रेशियोटी को 100% करबा पई यह अनागला टू ब्रिंग 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूल सिस्टम। ओपन स्कूल सिस्टम द्वारा 2 crore स्कूल चिल्ड्रेन को बैक करागला ओपन स्कूल रू। तापर देख विभिन्न स्ट्रक्चर देइथिले जेपरे कोठारी कमिशन, मुदालियर कमिशन, तापर एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विभिन्न स्ट्रक्चर आनिथिले। तो एनईपी 2020 स्ट्रक्चर आनिला द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस। ए 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करागला गोटे नुआ सिस्टम रे 5+3+3+4 और ये 5+3+3+4 कौन देखा देख स्ट्रक्चर कोरेस्पोंडिंग टू एज 3 ରୁ 8, 8 ରୁ 11, 11 ରୁ 14 और 14 ରୁ 18 यही सब एज रे यहाँ को कैटेगोराइज करागला। तो 5+3+3+4 सिस्टम किए आनिला एनईपी 2020 आनिला। तो देख ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर देख तो ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर कौन कौन आसिला देख प्रथमे फाउंडेशनल स्टेज आसिला, तापरे प्रिपरेटरी, तापरे मिडिल, तापरे सेकेंडरी। तो प्रथमे कौन फाउंडेशनल, तापरे प्रिपरेटरी, तापरे मिडिल, तापरे सेकेंडरी। फाउंडेशनल रे 5 वर्ष रहिला, 5 वर्ष रु प्रथम 2 वर्ष रहिला, प्रथम 3 वर्ष है अंगनवाड़ी बालवाटिका यह है 3 वर्ष। प्रथम 3 वर्ष अंगनवाड़ी बालवाटिका प्री स्कूल रे, तापर 2 वर्ष क्लास 1 आउ 2। तो फाउंडेशनल स्टेज रे 5 वर्ष, 5 वर्ष रे प्रथमे 3 वर्ष अंगनवाड़ी बालवाटिका प्री स्कूल है, तापर 2 वर्ष है कौन क्लास 1 एंड 2। तापर आसिला प्रिपरेटरी स्टेज। यही स्टेज रे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग है। यही 3 ईयर रे कौन क्लास 3 to 5। ये प्रिपरेटरी रे कौन रहिला क्लास 3 ରୁ 5 पर्यंत रहिला। तापर आसिला मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज रे क्लास 6 ରୁ 8 पर्यंत रहिला और मिडिल स्टेज होची एज 11 ରୁ 14। तापर आसिला सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज रे रहिला क्लास 9th to 12, क्लास 9th, 10, 11 और 12 4 वर्ष पर्यंत रहिला सेकेंडरी स्टेज। बुझी पारिले? तो 3+ द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 5+3+3+4 सिस्टम आनिला एनईपी 2020। ये एनईपी 2020 रे प्रथम 5 वर्ष फाउंडेशनल जो बालवाटिका प्री स्कूल अंगनवाड़ी सहित क्लास 1 एंड क्लास 2 5 ईयर इनक्लूड है। प्रिपरेटरी स्टेज रे क्लास 3 ରୁ 5 पर्यंत एज 8 ରୁ 11 पर्यंत एड है। तापर मिडिल स्टेज रे क्लास 6 ରୁ 8 पर्यंत और सेकेंडरी स्टेज रे क्लास 9 ରୁ 12 पर्यंत है। तापर देख एन ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। देख नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम कौन कला ये गोटे क्रिएट कला प्लेटफॉर्म टीए जहाद्वारा फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन करागला। तापर नेशनल असेसमेंट सेंटर परख अनागला। परख हैज बीन क्रिएटेड टू एसेस स्टूडेंट मानकु एसेस करिबा पई परख अनागला। तो ये परख रो फुल फॉर्म हैला परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यह है परख रो फुल फॉर्म। तो यह इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कंपनीज इन इंडिया। यह परख कौन कला फॉरेन यूनिवर्सिटी मन को इंडिया रे कंपनी सेटअप करने देला। इट एम्फासाइज सेटिंग ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन एंड डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप। नेशनल इंस्टीट्यूट पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। नेशनल इंस्टीट्यूट पाली, पर्शियन, प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन यह सब सेटअप करागला। तापर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन है।
Part IV of Indian Constitution, Article 45 and Article 39F of Directive Principle of State Policy DPSP has a provision for state funded as well as equitable and accessible education. Equitable और accessible education ପାଇଁ Article 45 और Article 39 ର F ରେ DPSP ର Part IV ରେ दियागला. The 42nd Amendment to the Constitution in 1976 moved education from the state to concurrent list. State list रे education थिला यहाँ को concurrent list रे अणागला. देखो 86th amendment in 2002. 86th amendment 86तम संविधान संशोधन 2002 मसीहा रे made education an enforceable right under article 21A. education को कौन करागला मौलिक अधिकार कर दिगला 86th amendment 86तम संविधान संशोधन आईन 2002 रे क्योंठिरे आर्टिकल 21A रे. तापर देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 aims to provide primary education to all children 6 to 14 years and education as a fundamental right. तो आरटी एक्ट 2019 अनुसार प्राइमरी एजुकेशन चाइल्ड रो 6 to 14 पर्यंत यह गोटे फंडामेंटाल राइट कर दिगला. बुझीपारे. देख 1885 मसीह तीनोटी मुख्य जिनिस आसीला. प्रथम आसीला नवोदय विद्यालय स्कीम एनवीएस. कहाँ आसीला नवोदय विद्यालय? तो नवोदय विद्यालय रूराल टैलेंटेड ग्रामीण टैलेंटेड स्टूडेंट मानक पई नवोदय विद्यालय आसिला. तापर इग्नो आसिला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. इग्नो आसिला केबे 1985 मसीह रे इग्नो. तापर एमएचआरडी आसिला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी आसिला. तो आमको पचारे एमएचआरडी केबे आसिथिला 1985 मसीह रे. इग्नो केबे आसिथिला 1985 मसीह रे. नवोदय विद्यालय स्कीम केबे आसिथिला 1985 मसीह रे. आमको आहरी क्वेश्चन पचारिबो नवोदय विद्यालय काहांकर स्वप्न थिला? तो नवोदय विद्यालय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को स्वप्न थिला नवोदय विद्यालय. तो नवोदय विद्यालय केबे आसिथिला 1985 मसीह रे. तापर देखो क्वेश्चन पचारे नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन बा कमिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन क्या कह जाए? तो कमिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बा नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन क्या कह जाए? डॉक्टर संपूर्णानंद कमिटी को कह जाए. नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन उपरे संपूर्णानंद कमिटी आसीथिला. संपूर्णानंद कमिटी केबे आसीथिला? 1961 मसीह संपूर्णानंद कमिटी आसीथिला. तो यह परीक्षा रे पढ़ले करि पारिबे. क्वेश्चन केमिति पचारिबो नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन उपरे क्यों कमिटी आसीथिला? संपूर्णानंद कमिटी आसीथिला. संपूर्णानंद कमिटी कोन पई आसीथिला? नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन पई आसीथिला. तापर संपूर्णानंद कमिटी केबे आसीथिला? 1961 मसीह रे आसीथिला. बुझी पारिले. तापर देखो एसयूपीडब्ल्यू 1977 रे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क. एसयूपीडब्ल्यू केबे आसीथिला? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जदि पचारे तो 1977 रे आसीथिला कहि परिबे. आंसर दे परिबे. तापर देखो मंडल कमिशन 1979 रे आसीथिला. यह जनता पार्टी सरकार समय रे आसीथिला. तो जनता पार्टी सरकार समय रे वीकर सेक्शन पई क्यों कमिशन आसीथिला जदि पचारे तो मंडल कमिशन हेबो राइट आंसर. कहा पई मंडल कमिशन आसीथिला जदि पचारे फॉर वीकर सेक्शन कहि परिबे यह हेबो राइट आंसर. मंडल कमिशन केबे आसीथिला? 1979 रे आसीथिला.